प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सभी को फिर से मौका दिया उसकी आराधना करने का। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुशी भी होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमारे कलीसिया खुल रहा है। चलिए आइए हम सब मिल के उसके आराधना करते हैं। हमारे बीच में मार्क कैलवेट है, वो आराधना में हमें साथ दें। गुड मॉर्निंग, सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। आज हम जानते हैं संसार की परिस्थिति को, कैसा सिचुएशंस है सारे तरफ, और दूर दूर तक यदि देखें तो हमें किनारा नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अब दूर नहीं है किनारा, और वही है जो हमारे धीरज को बढ़ाते हैं, और वो हमें डूबने नहीं देंगे, परंतु हमें किनारे तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। So as we go further in worship, let's keep in mind that as we walk past life, the things we encounter, be it good or bad, let's always remember that He holds the future for us. He lived and died to buy our pardon. And our life is worth living just because He lives, and He is definitely going to guide us through this journey of life. God sent His Son, they called Him Jesus. He came
to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. The greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Hello guys, good to see you all after a week, and we welcome you once again. Thank you for joining with us. Thank you for staying connected with us. We welcome you all once again to the Sunday morning, and before we go, we will pray for you, and we will pray that God will open your eyes, God will open our hearts to show us more deep secrets in His Word. Lord, we thank you and we bless all the viewers in Jesus' mighty name. Open their hearts and the Spirit and help us, Lord, to see wondrous things out of your Word, and help us to know how majestic and how great is your Word. In Jesus' name we pray. Amen. Today's topic is the mystery of the boat. आज का जो विषय है वो है नाव का रहस्य. नाव का क्या रहस्य है? What is this mystery of the boat? I want your careful attention. आप ध्यान से सुनिए, और हम बाइबल से और परमेश्वर के वचन से कुछ देखेंगे, और मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ. सबसे पहले बाइबल में जो नाव है, वो नाव का इब्रानी शब्द जो है वो आबरा है, जिससे हमें इब्रानी लोग का शब्द आता है. द वर्ड फॉर अ बोट इन हिब्रू is the word from where we get the word for the Hebrews, because the people of God represent a boat. परमेश्वर के लोग जो है, जो इब्रानी लोग थे, वो नाव को दर्शाते थे. इसलिए नाव का शब्द से हमें इब्रानी का शब्द आता है, या इब्रानी लोग के शब्द आता है. Also in the Bible we know that there is a 7 lamp candlestick. I have showed you this photo before. आपको पता है कि बाइबल में एक 7 दीवट का स्टैंड है.
जहाँ पे 7 दिए थे वहाँ पे। तो ये जो है इसके तस्वीर में मैंने पहले दिखाया है और ये कलीसिया को दर्शाता है। अगर आप उसके चित्र को देखेंगे तो ऊपर के स्थान में वो छोटे छोटे नाव के समान उसका आकार है। इफ यू सी अ लैम्प स्टैंड, द टॉप पार्ट ऑफ द लैम्प स्टैंड इट्स सिमिलर टू अ बोट एंड इट इज इन द शेप ऑफ अ बोट बिकॉज द बोट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द चर्च, द बिलीवर्स, क्योंकि नाव जो है मसीह लोग को भी दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स द बिलीवर्स, विश्वासी लोग को दर्शाता है। What is the most interesting thing is the Hebrew word for boat is ani, but the Hebrew word for eye is also ani. बोट या नाव का जो शब्द है इब्रानी में उसे ani कहते हैं, लेकिन हमारा जो शब्द है या मैं का शब्द को भी ani कहते हैं, क्योंकि हम जो है एक नाव है। हम एक नाव है। We are a boat. So a boat represents suffering. That is why in life we have relationship. That is why we have situationship. That is why we have hardship. इसलिए हमारे जीवन में परिस्थिति है, कष्ट है, दुख है। इंग्लिश में इसे कहते हैं हार्डशिप कहते हैं, उसमें नाव का शब्द आता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक नाव के जैसा है। So our life is like a ship, but the ship that we have to be in is worship. लेकिन वो नाव जिसके अंदर में हमें रहना है उसे वर्शिप कहते हैं, आराधना में हमें रहना है। एक मसीह और एक नाव का बहुत सारा मेल मिलाप है। सबसे पहले जो लकड़ी है वो इंसान का कष्ट को दर्शाता है, वो इंसान का परिस्थिति को दर्शाता है। द वुड और द कलर ब्राउन रिप्रेजेंट्स सफरिंग और रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटी। Water can represent the tears. The two paddles, it represents our hardship, our toil. तो नाव जो लकड़ी है वो कष्ट को दर्शाता है, वो जो पानी है वो आंसू को दर्शाता है। जो हाथ से उन लोग लकड़ी से उसे ठेल के लेके जाते हैं पानी में, वो हमारा हाथ का कार्य को दर्शाता है, वो समस्या और परिस्थिति को दर्शाता है। This boat represents the suffering. It represents the human life. ये जो नाव है ये हमारा परिस्थिति को दर्शाता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप बाइबल में ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो नाव है वो हम देखते हैं उत्पत्ति में। नूह को परमेश्वर ने बोला कि एक जहाज बनाओ, एक बड़ा जहाज बनाओ। The first reference to a ship, a big ship, is found in Genesis when God commands Noah to build a big ship. To build a big ship. When God told Noah to build this ship, God told him to make it in 3 stories. जब परमेश्वर नूह को बोला कि एक जहाज बनाने के लिए, तो ये 3 ताले थे, उसमें 3 ताला का यह जहाज था। क्योंकि मंदिर में भी 3 स्थान था, because in the temple there was 3 places. The outer court, the inner court and the holy of holies. मंदिर में भी बाहरी आंगन, पवित्र वेदी और महापवित्र वेदी था। ये जो जहाज था ये परमेश्वर का मंदिर को दर्शा रहा था। लेकिन वहां पे अगर आप पढ़ेंगे, जहाज का जो शब्द है वो इब्रानी में उसका मतलब एक वचन भी होता है। The Hebrew word for ark there in Genesis, it also represents a word. It refers to a word. So this boat, this ship, this big ship of Noah did not have any hope. The situation was so bad, there was so much water. इतने सारा पानी था और जो जमीन था उसका रूप जो है बिगड़ चुका था। लेकिन but there's something that we find. There is something that we find in Genesis. उत्पत्ति में हम कुछ चीज को पाते हैं, and I want to read this to you. It says
in Genesis 8:4, and the ark rested in the 7th month on the 17th day. लेकिन कहता है कि यह जहाज जो है 7वां महीना का 17 तारीख को ये एक पहाड़ के ऊपर में आके वो रुक गया है. It's very interesting because the 17th day is the day when Jesus rose from the dead. ये 17 तारीख वो समय है जब यीशु मसीह वही तारीख को उसका पुनरुत्थान होता है, वही तारीख को यीशु मसीह फिर से जीवित होता है. So Jesus' resurrection and Jesus' work on the cross, it gives us this hope that our boat will land safely. यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, यीशु मसीह का जो उसका क्रूस में मारा जाना है, ये हमें दर्शाता है कि हमारा जो नाव है नदी के किनारे आएगा. Our boat will land safely. So we have seen that this boat also represents a word. It represents a word. Now in the Bible we see this word ark appears again in the story of Moses. अगर हम बाइबल में देखेंगे, ये जो शब्द है, ये जहाज का शब्द फिर से मूसा का कहानी में हमें दिखाई देता है. अगर हम निकालेंगे निर्गमन में, यहाँ पे हमें दिखाई देता है, एक चीज़ दिखाई देता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. निर्गमन का 2:3, Exodus chapter 2 verse 3. It says, when she could not hide Moses, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. Here it says that Moses was hiding. When he was born, his parents could not hide him, and then they made a basket for him. They put Moses in the basket. मूसा को जब उसका जन्म हुआ, उसको छुपा नहीं सका, तो उसके लिए एक छोटा बास्केट, एक कटोरी बनाया था जिसका आकार पूरी तरीके से नूह के जहाज के जैसा था. क्योंकि जब नूह का जहाज जा रहा था तो कुछ नया शुरुआत होने वाला था. उसी प्रकार से जब मूसा को भी एक कटोरा में बंद करके उसे पानी में डाल दिया था, क्योंकि परमेश्वर जो उसके लोग के बीच में कुछ नया चीज़ शुरुआत करना चाहता था, कुछ नया चीज़ को उत्पन्न करना चाहता था. अगर आप इसे पढ़ेंगे, जो चीज़ को इस्तेमाल किया था कटोरी बनाने के लिए, उसको वचन लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. उसके ऊपर लोग जो है वचन लिखते थे. बाइबल के बहुत सारे चीज़ भी जो है वो पत्ते और वही चीज़ को इस्तेमाल करके लिखते थे. द सेम रीड्स, द मटेरियल दैट वाज यूज्ड फॉर मोसेस बास्केट, इट वाज यूज्ड टू राइट वर्ड्स, इट वाज यूज्ड टू राइट डॉक्यूमेंट्स, इट वाज यूज्ड टू राइट द बाइबल आल्सो in many places. So Moses' basket represents a word. That is why when Moses was put in a basket and they put the basket in the water and they sent him, even there were many crocodiles in the river, nothing happened to him, but his boat or his basket reached safely in the right time in the right place. तो मूसा जो था, उसे जब वो कटोरा में डाले और वो नदी में रख दिए थे, उसके बाद उसका जो नाव है, जो कटोरा है, वो सही समय में सही स्थान में पहुंचा. क्योंकि वो जो कटोरा था वही चीज़ और सो सामान को इस्तेमाल करते थे वचन को लिखने के लिए, वचन को लिखने के लिए, और वो वचन को दर्शाता था. तो सबसे मूल्य चीज़ ये है कि यह नाव या यह जहाज जो है वो नाव नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो आपका नाव है. So the main thing is that God's word is your boat that takes you to your destination. God's word is your boat that takes you to your destination. हम देखेंगे मरकुस का 4, मार्क चैप्टर 4 वर्स 38 पद को देखेंगे. And he was in the hinder part of the sheep, sleeping on a pillow, and they awoke him and said, Master, care thou not that we perish. And verse 35 it says, at the even Jesus came to them and said, let us pass unto the other side. मरकुस का 4 में जब हम पढ़ते हैं, ऐसा परिस्थिति आता है कि जब यीशु मसीह कहता है उसके चेलों से कि चलो हम उस पार जाते हैं. उसके बाद बीच में यीशु मसीह सो जाता है और एक बड़ा आंधी और तूफान आता है. And Jesus is sleeping in the middle of the storm. But what got them to the other side
was not any problem on his storm. It was when Jesus said, "Let us go to the other side." जब यीशु मसीह एक बार बोल दिया था उन लोगों को कि चलो हम उस पार जाते हैं, वो शब्द, वो वचन जो है उन्हें उस पार लेके जाता है। तो हम देखते हैं कि हर समय जो है हम जब कोई जगह में पहुंचते हैं या जो कि नाव पहुंचता है, वो परमेश्वर के वचन के वजह से है, वो परमेश्वर के वचन के वजह से है। ये मूल्य चीज है। प्रेरितों के काम का 27 में हम ये घटना को जानते हैं। इन एक्ट्स चैप्टर 27 वी सी दैट पॉल वॉज गोइंग ऑन अ शिप। पॉल जो है एक जहाज में जा रहा था और अचानक एक बड़ा आंधी तूफान आया। There was a sudden big storm and wind that came, and the Bible even says the name. It was Euroclydon. The name of the wind and the storm was Euroclydon. It was a very dangerous storm. But the day that Paul reached to the land and God brought him to the land safely was on the 14th day. लेकिन वो समय जब पौलुस पहुंचा था वो जमीन में, वो आंधी तूफान के बीच में भी, वो 14 तारीख को था, क्योंकि जब यीशु मसीह मारा गया था वो 14 तारीख था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का क्रूस में मारा जाना, वो हमारा जहाज को हमारा नदी के किनारे लेके जाता है। इसलिए एक जहाज में उस समय में एक क्रूस का निशानी होता था। दैट इज व्हाई देयर वाज अ क्रॉस साइन ऑन द बोट इन दोज डेज, बिकॉज इट इज जीसस डेथ, जीसस सफरिंग एंड जीसस रिजरेक्शन दैट ब्रिंग्स अस दिस लाइफ गिविंग होप दैट आवर बोट, our ship will definitely reach safely. यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ा जाना, ये हमें वो जीवित आशा देता है। मूसा को परमेश्वर कहता है कि एक वाचा का संदूक बनाने के लिए God commands Moses to make an ark of covenant. So when Moses makes an ark of covenant, we all know this picture and how this ark of covenant looks. We have seen this sometime. When we take the ark of covenant, the Ark of Covenant looks very similar. It looks very similar to a boat. अगर हम वाचा का संदूक को लेते हैं, उसके अंदर में एक लकड़ी का डब्बा है और वो जो डिब्बा है वो पूरी तरीके से एक नाव के जैसा दिखता है। It looks very similar to a boat and the shape is also similar to Noah's Ark. It was in a rectangle shape. Now what is interesting is this ark had Aaron's rod inside. ये संदूक के अंदर में हारून का लकड़ी था। And this can represent the ark of Noah when he sends a dove to test whether the waters have been dried or not. And the dove brings back a leaf, an olive leaf to him. And then we also have manna inside the ark. उसके बाद में हम देखते हैं कि उसमें मन्ना भी रखा हुआ था। जैसा नूह भी जब जहाज में गया तो वो भोजन को लेके गया। We also see that there was the word inside the ark. हम देखते हैं कि वो वचन भी जो है वो भी वो वाचा का संदूक में था, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन होना है, परमेश्वर का वचन होना है और पवित्र आत्मा का सामर्थ होना है। ये जो है वो नाव में होना है। इसलिए जो नाव जो है उसके बगल बगल में 2 लकड़ियाँ भी थी, क्योंकि उस ज़माने में जो नाव थी उसमें 2 कम से कम लकड़ियाँ थी जिससे इंसान लोग उसे पानी में ठेल के ढकेल के लेके जाते हैं। There were 2 paddles in the boat. In the first century boat, there were at least 2 men and 2 paddles, and they used to paddle the boat. And shockingly, there are 2 wooden poles side of the ark. So this represents a boat, and it has also needs the word of God in it. तो परमेश्वर का वचन है जो हमारा नाव को नदी के किनारे लेके जाता है। परमेश्वर का वचन वो नाव है जो हमें अपना मंजिल में लेके जाता है और हम वहां पे पहुंचते हैं। नूह का जहाज अपने मंजिल में पहुंच गया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो जहाज का वजह से, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा मानने से, परमेश्वर का वचन से। मूसा का जहाज वहां पे पहुंच गया था क्योंकि परमेश्वर, वो जो जहाज था या वो जो कटोरा था वो परमेश्वर का वचन को दर्शा रहा था। God's word is the boat that takes you to your destination. जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया तो यीशु मसीह ने बोला चलो हम उस पार जाते हैं, और वो लोग उस पार पहुंच गए।
तो वो वचन है जो नाव है, ये हमें जानना है। सो जीसस डिड 3 थिंग्स इन द बोट। बाइबल में यीशु मसीह 3 चीज को करता है नाव में। सबसे पहले यीशु मसीह नाव में प्रवेश करता है, उसके बाद यीशु मसीह नाव में बैठता है, उसके बाद यीशु मसीह नाव में सोता है। फर्स्ट जीसस enters the boat, then Jesus sits on the boat, and then Jesus sleeps on the boat. यीशु मसीह आपके नाव में क्या कर रहा है? What is Jesus doing in your boat? Has Jesus just entered your boat, or has Jesus is sitting in your boat, or is Jesus sleeping? Can he rest in your boat? सबसे पहले जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो वो हमारा नाव में प्रवेश करता है। उसके बाद में जब यीशु मसीह बैठ जाता है वो हमें सिखाने लगता है। तीसरा बार जब हम अपने शरीर में मर जाते हैं तब यीशु मसीह विश्राम कर सकता है हमारे ऊपर में। That is why first Jesus entered, then Jesus sat to teach, but then Jesus felt comfortable, he slept in the boat. तो जब यीशु मसीह प्रवेश करता है हमारा आत्मा में प्रवेश करता है, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे नाव में बैठता है वो हमारा प्राण को नया करता है, हमारा प्राण को सिखाता है। लेकिन जब हम नहीं जीवित होते हैं किंतु यीशु मसीह जीवित होता है तब यीशु मसीह आराम करता है हमारा नाव में। तो व्हाट इज जीसस डूइंग इन योर बोट? सो द सिंबल ऑफ बोट मीन्स आई नो लॉन्गर लिव बट ही लिव्स। एक नाव का मतलब है कि यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार हम चलेंगे या हम जाएंगे। इसलिए एक नाव को वो हवा जो है ढकेल के लेके जाता है, तो हमें उस प्रकार से रहना है। तो याद रखिए, एक मसीह के लिए एक नाव का मतलब क्या है? मसीह के लिए नाव का मतलब है कि मैं नहीं जीता हूं किंतु यीशु मसीह जीता है। जो पानी है वो आपका प्रार्थना का आंसू को दर्शाता है, वो जो हवा है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ को दर्शाता है, और जो बगल बगल में लकड़ी है वो आपका दोनों का हाथ को दर्शाता है, जिससे आप प्रार्थना कर सकते हैं और आराधना कर सकते हैं, और आपका नाव जो है आगे बढ़ेगा। तो मैं ये किसी को कहने के लिए आया हूँ, आई हैव कम टू से दिस थिंग दैट द बोट एंड द क्रिस्टियन हैव डिफरेंट कंपैरिजन। द बोट रिप्रेजेंट्स दैट यू डू नॉट लिव बट जीसस लिव्स। The water represents the tears of your praise, and the 2 battles of the boat represent your hand that you can use to pray, that you can use to worship God, and that your boat will definitely go to the destination. Your boat will definitely go to the destination. आपका नाव जो है नदी के किनारे जरूर पहुंचेगा। मुझे पता नहीं आपका क्या परिस्थिति है और क्या समस्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो नाव है जो आपको अपने मंजिल के पास लेके जाएगा। इसलिए जब यीशु मसीह नाव में सोया था तो वो पीछे का सीट में सोया था। When Jesus was sleeping on the boat in Mark 4, he was sleeping in the hinder part. He was sleeping where the driver sits. क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं आप पीछे से सुनते हैं। जब एक चरवा एक भेड़िया को आगे लेके जाता है वो पीछे से चल के जाता है, वो आगे नहीं जाता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं आप पीछे से सुनते हैं। That is why Jesus was sleeping in the hinder part of the boat. इसलिए यीशु मसीह मरकुस का 4 में जब नाव में सोता है वो पीछे स्थान में सोता है जहाँ पे वो नाव चलाने वाला बैठता है, क्योंकि यीशु मसीह आपके नाव को चलाएगा। और जब यीशु मसीह का आवाज़ को आप सुनते हैं आप पीछे से सुनते हैं। जब यीशु मसीह जो चरवा है वो भेड़ लोग को संभाल के लेके जाता है, वो पीछे से आवाज़ करता था। जो चरवा था वो पीछे से आवाज़ करता था और भेड़ लोग आवाज़ सुन के जाते थे। तो आपको अपना आत्मा में आप परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हैं, आप पीछे से परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हैं, और वो आवाज़ जो है वो सामर जो है वो आपका नाव को आगे लेके जाता है। तो याद रखें, आपका नाव जो है वो वर्शिप है। योर शिप इज द represents the worship in which ship you have to be. No matter what situation you are, when you worship, your ship will go to the destination. इसलिए एजिकिल का 27 का अगर आप पढ़ेंगे, एजिकिल का 27 का 5 में
ऐसा लकड़ी इस्तेमाल किया जाता था नाव में कि वही लकड़ी जो है अलग अलग सुर बजाने या म्यूजिक बजाने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था. द सेम वुड यूज्ड फॉर बोट was the same wood used to make music instruments. So this boat represents a worship, and in this ship you need to be. And I have some good news that your boat will definitely reach to the destination. आपका नाव जरूर जो है नदी के किनारे पहुंचेगा, और ये वचन आपको अपने आत्मा में ग्रहण करना है. So I'll pray for everyone. हम प्रार्थना करते हैं. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं. ये सारे वचन परमेश्वर हमारे आत्मा में हम इसे याद करने सके और हम तेरे आवाज़ को सुन सके. हम तेरा जो आत्मा है उसके अनुसार हम लोग चल सके. हम नहीं जिएंगे लेकिन किंतु तू जिएगा, और हम सिर्फ तेरी आराधना कर सके, जिसके द्वारा हमारा जो नाव है नदी के किनारे पहुंच जाएगा. और जितने लोग हमें देख रहे हैं, we pray for every person, all the viewers who are watching us. Bless every family, every member of the family, and all those who are joining us in every place. Bless them, touch them, Lord Father, and whatever situation they are in, whatever problems they're going through, Lord, we ask that their boat must reach to the right place and the right time and the right destination. I decree and I speak that your grace, your provision, your prosperity and your blessing may follow them in every area, and may your grace and may your mercy be available and may be manifested in every situation which they want you to see. May they see and may they hear that you are Lord. May they know that you are Lord, and may they know that you are the Creator. परमेश्वर इन लोग जानने सके कि इन लोग का नाव छोटा है लेकिन समुंदर बहुत बड़ा है. इन लोग जानने सके कि तेरा जो सामर्थ्य है वो बहुत बड़ा है. इन लोग का नाव जो है बहुत छोटा है लेकिन तू सृष्टि करने वाला है. द बोट इज स्मॉल बट योर पावर that you have created this world, you have created the seas is great. May they experience this power. In Jesus' name we ask and pray. Amen.